Question says 27 small cubes each having edge 4 cm are arranged to form a large cube. हमने 27 छोटे छोटे क्यूब्स लेकर एक बड़ा क्यूब बनाया है और जो 27 छोटे क्यूब्स हैं इनकी हर एक की एज 4 सेंटीमीटर है. तो अगर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है उन्हें जोड़कर हम एक बड़ा क्यूब बना लें, 27 ऐसे क्यूब्स को जोड़कर एक बड़ा क्यूब बना ले तो उसका वॉल्यूम क्या होगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एक्चुअली. Now here you can see this diagram. What we are talking is that they have joined 27 small cubes of side 4 cm. So if you pick up one cube out of this, say if I take out one cube out of this will be that one cube, and the side of this one cube is given as 4 centimeter. So this side of this cube is 4 centimeter, and they are asking when we join 27 such cubes what will be the volume. So for that what we can do is we can find out the volume of one cube. So this volume will be given by side into side into side, which is 4 into 4 into 4, which is 64. तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे हमने 27 क्यूब्स को ज्वाइन किया है. तो आप इसको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ 27. सो 64 मल्टीप्लाइड बाय 27, इट इज गिवन बाय 1728 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब विल बी 1728 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है. यू कैन गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर सी. Question says the side of the cube formed by melting a solid cuboid with dimensions 27 cm, 24 cm and 9 cm. So according to the question हमारे पास एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमें एक क्यूब बनाना है. क्यूबॉइड को हमें मेल्ट करना है और एक क्यूब बनाना. क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमें एक क्यूब बनाना है. सो द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि what will be the side of the cube. तो ये जो क्यूब हमारा बनेगा उसकी साइड क्या होगी. Now this we have one such question we have already discussed कि जब हम एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बनाएंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल रहेगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. Now solving this question you find out the volume of cuboid and from that you equate the side of the cube. Let us first find out the volume of cuboid. हम cuboid का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. That is length multiplied by breadth multiplied by height. Length is 27, breadth is 24, multiplied by height is 9. Let us multiply 27 and 24. So we see that on multiplying 27 and 24 we get 648 multiplied by 9. My answer is 5832. So volume of the cuboid is 5832 centimeter cube. Now remember this volume of cuboid is actually similar to the volume of cube, क्योंकि जब आप एक cuboid को मेल्ट करके क्यूब बनाएंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. So volume of cube is now 5832 and we can find out the side of the cube. Side of the cube is given by cube root of volume. Volume is 5832. It is the cube of 18. So the value of side is, जो क्यूब की साइड आएगी वो 18 आएगी. Answer is option number A. The volume of a room is 120 meter cube. रूम की वॉल्यूम दे दी है. रूम मतलब
एक क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, लेट अस सी, एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 25 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम? एरिया ऑफ फ्लोर मतलब बॉटम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस की ये बात कर रहे हैं. सो रिमेंबर द फॉर्मूला, हाइट ऑफ द रूम will be given by volume of the room divided by area of the floor. वैसे तो बुक में ये इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक में दिए हैं तो आप इसको देख लीजिए और लिख लीजिए. एग्जाम में इसके आने के चांसेस कम है. दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 25. 120 divided by 25, answer is 4.8. meter. Answer is option number D. Question says, what will happen to the volume of a cuboid if its length is doubled, breadth is same and height is doubled? So let us draw two cuboid to understand this question. This is asking that we change the height and the length of the cuboid एंड वी कीप द ब्रेथ सेम. क्वेश्चन में बताया है कि हमारे पास दो क्यूबॉइड हैं और पहले क्यूबॉइड और दूसरे क्यूबॉइड में हमने ब्रेथ को सेम रखा है पर लेंथ और हाइट को हमने डबल कर दिया है. सो लेंथ एंड हाइट विल बी डबल्ड एंड देन दे आर आस्किंग सो व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम. सो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम. ऐसे केसेस में हम ये हमने दो क्यूबॉइड ले लिए हैं एंड लेट अस अज्यूम द क्यूबॉइड, फर्स्ट क्यूबॉइड लेंथ इज L. फर्स्ट क्यूबॉइड की लेंथ को आप L ले लीजिए, ब्रेथ को B ले लीजिए, हाइट को H ले लीजिए. सेकेंड क्यूबॉइड में इन्होंने बताया लेंथ को डबल करना है, तो लेंथ को डबल करना है, L को डबल करना है तो लेंथ 2L हो जाएगा, ब्रेथ सेम B रहेगा, हाइट डबल हो जाएगा, H का डबल हो जाएगा 2H. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड क्यूबॉइड इज लेंथ अब 2L हो गया है, ब्रेथ सेम है, हाइट अब ट्वाइस मतलब 2H हो गया है. आप इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड देम. Now when we divide them friends, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, ब्रेथ से ब्रेथ कैंसिल हो जाएगा, हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पर 1 1 और 1 बचेगा, तो न्यूमरेटर 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया 1 और डिनोमिनेटर में ये 2 इंटू 2 इज 4. सो द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूबॉइड, इसे V1 इसे V2 कह देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूबॉइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड क्यूबॉइड, ये वैल्यू आ गई 1/4. 1/4 का मतलब ये है कि जो सेकेंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम है वो 4 है और फर्स्ट क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो 1 है. तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम है वो 4 हो गई है, मतलब 4 टाइम्स हो गई है. उसमें क्या इंक्रीज आ गया है? 4 टाइम्स का इंक्रीज आ चुका है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. The volume of the second cuboid will become 4 times. Next, find the question is asking to find the weight of a solid rectangular iron piece of size 40 centimeter, 30 centimeter, and 20 centimeter. If 1 centimeter cube of iron weighs 13 gram. Question में बताया है solid रेक्टेंगुलर आयरन पीस. सॉलिड रेक्टेंगल का मतलब क्यूबॉइड होता है. यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सॉलिड रेक्टेंगल मींस इट इज अ क्यूबॉइड और क्यूबॉइड शेप का एक आयरन पीस हमें इन्होंने दिया हुआ है जिसकी इन्होंने लेंथ दी हुई है, इसकी ब्रेथ दी हुई है और इसकी हाइट भी दी हुई है. लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है,
हाइट भी दी हुई है. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन एज 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो उसके बाद उन्होंने पूछा है कि इसका वेट कितना होगा, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 13 ग्राम वेट होता है, तो इसका वेट क्या होगा. लेट अस टेक द लेंथ एज 40, breadth as 30 and height as 20. So let us find out the volume of this solid rectangular iron piece. Length 40 multiplied by breadth 30 multiplied by height 20. This is 4 3s are 12, 12 2s are 24, और उसके आगे आप 30 लगा दीजिए. The volume is 24,000 centimeter cube. So volume is 24,000 centimeter cube. Now according to the question, 1 centimeter cube iron का weight होगा 13 ग्राम. So हमारे पास है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 24,000 है. इन्होंने बताया कि अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका वेट 13 ग्राम आता है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो 24,000 है. तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 13 ग्राम है तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होगा. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 24,000 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई 24 एंड 13, और उसके बाद हमें 0 लगा देने होंगे. दिस इज 12, दिस इज 10 एंड दिस इज 2, दिस इज 2 1 एंड दिस इज 312 एंड देन 3 zeros. और ये जो आंसर आ रहा है ग्राम में आ रहा है, पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो सभी केजी में. ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए. ये 30,000 के, ये 3,12,000 के, ये कैंसिल हो जाएंगे. हमारा आंसर हो जाएगा 312 kg. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. So it is asking find the number of cuboidal boxes of dimensions 4 centimeter, 3 centimeter and 12 centimeter which can be stored in a carton of dimensions 40 centimeter, 72 centimeter and 48 centimeter. तो इन्होंने बताया कि हमारे पास एक बड़ा कार्टन है और उस बड़े कार्टन में कितने हम छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्सेस रख सकते हैं. हमें बड़े कार्टन की भी डायमेंशन दी हुई है. बड़े कार्टन की जो डायमेंशन है दैट इज 40 सेंटीमीटर इज टू 72 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, हमें जो बड़ा वाला जो बॉक्स है, ये कार्टन है, इसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट बताई हुई है. और इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर हम कितने छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्सेस रख सकते हैं, और उन छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्सेस की भी इन्होंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताई हुई है. द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द स्मॉल क्यूबॉइडल बॉक्सेस, इसके अंदर हमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं. This is the small cuboidal box which we have to keep inside these big. और इन्होंने दोनों का लेंथ ब्रेड्थ हाइट, बड़े वाले कार्डबोर्ड का, कार्टून का इन्होंने डायमेंशन दिया है. लेंथ इज 40, breadth is 72 and height is 48. And the length, breadth and height of the smaller box is 4 centimeter, length, breadth 3 centimeter, height 12 centimeter. So for this, कितने छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्स आएंगे, इसके लिए the simple formula, the number of boxes will be given by the formula volume of carton upon volume of स्मॉल क्यूबॉइडल बॉक्स. जो छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्स हैं उससे आप डिवाइड कर दो. बड़ा वाला जो कार्टन है उसको आप न्यूमरेटर में रखो और क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम को आप डिनोमिनेटर में रखो. सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है.
कि दोनों जो यूनिट सेम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कार्टन भी हमें सेंटीमीटर में दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स भी सेंटीमीटर में दिया है, तो वॉल्यूम का यहाँ पर यूनिट्स का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये आपको न्यूमरेटर में लेना है, विच इज द डायमेंशंस ऑफ द बिगर कार्टन। तो कार्टन के जो लेंथ ब्रेथ हाइट है उसको न्यूमरेटर में ले लीजिए, और क्यूबॉइडल बॉक्स जो छोटे छोटे जो क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसको हमें इस कार्टन के अंदर रखना है उसे आप डिनोमिनेटर में रख लीजिए। दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो वॉल्यूम ऑफ कार्टन न्यूमरेटर में ले लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स डिनोमिनेटर में। और इसको डिवाइड करते समय यूनिट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर है तो यूनिट सेम करना हमें ज़रूरी पड़ेगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें दोनों ही कार्टन के डायमेंशंस भी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं और जो छोटे क्यूबॉइडल बॉक्स उसके अंदर हम रखने जा रहे हैं वो भी हमें सेंटीमीटर में दिए, तो इज नो प्रॉब्लम इन द यूनिट्स कन्वर्जन। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन इज़ वेरी सिंपल, देखो सारे नंबर कैंसिल होने वाले हैं, ये 12 और 48 इसको आप कैंसिल कर लो, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये डिनोमिनेटर का 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 72 आप कट कर लो, ये 24 हो जाएगा। सो आई एम ओनली लेफ्ट विद इन द न्यूमरेटर इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो 24 इंटू 4 वी नो 96 होता है, आगे आ जाएगा 960। सो नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर 960 बॉक्सेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन कई सालों तक बहुत कॉमन रहा, अब इसके अलग अलग फॉर्मेट रहे, कभी बॉक्स रखने का पूछा, कभी स्लैब्स रखने का पूछा, कभी कोई लॉग ऑफ वुड रखने का पूछा, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहा। इसी तरह एरिया पेरीमीटर में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन रहे, पर अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि है ना हर तरह से इसको पूछ लिया गया है। बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, डिवाइड करने की बात चल रही है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूबॉइडल बॉक्स, जो बॉक्स हम उसके अंदर रखने वाले हैं उसके डायमेंशन से डिवाइड कर दीजिए। Question says a tea packet measures 10 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeter. How many such tea packets can be placed in a cardboard box of dimensions 5 meter, 3 meter and 0.2 meter? तो क्वेश्चन में ये ऐसा बताया है कि हमारे पास छोटे छोटे टी पैकेट्स हैं जिसको हमें एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखना है। कार्डबोर्ड बॉक्स की डायमेंशंस इन्होंने लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, मींस इट इज़ अ क्यूबॉइड, और जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इन्होंने दी है वो मीटर में दी हुई है। और इसी के साथ इन्होंने छोटे छोटे टी बॉक्सेस की भी लेंथ ब्रेथ हाइट बताई हुई है, विच इज़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एंड नाउ पे अटेंशन कि जो टी बॉक्सेस हैं उनकी लेंथ ब्रेथ हाइट इन्होंने सेंटीमीटर में बताई है, और जो छोटे छोटे टी के पैकेट्स हैं जो हमें इसके अंदर रखने हैं उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इन्होंने सेंटीमीटर में दी है। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज, जब हम इसके आंसर को सॉल्व करेंगे, आंसर को सॉल्यूशन को लाएंगे, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे जो यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, ये बड़ा वाला जो डायग्राम है दैट इज़ द क्यूबॉइड और रादर द कार्डबोर्ड बॉक्स जिसके अंदर हमें ये टी पैकेट्स रखने हैं, उसकी लेंथ 5 मीटर है, सेंटीमीटर में अगर लाएंगे तो 500 सेंटीमीटर है। वाई वी आर डूइंग दैट विल डिस्कस। इसकी ब्रेथ 3 मीटर है, इन सेंटीमीटर इट इज 300 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 0.2 मीटर एंड इन सेंटीमीटर इट इज 20 सेंटीमीटर। एंड द स्मॉल टी पैकेट्स का डायमेंशन हमें क्या दिया हुआ है, जो छोटे छोटे टी पैकेट्स दिए हैं उनकी डायमेंशन हमें इन्होंने दी है, लेंथ इज 10, breadth is 6 and height is 4. So 10, 6 and 4. So number of tea packets will be given by, अगर हमें ये निकालना है कि इस बड़े बॉक्स के अंदर कितने टी पैकेट्स आएंगे, so for that what you do is you divide the volume of the cardboard box divided by volume of 1 tea packet. That is given by volume of cardboard box is
सेंटीमीटर में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है बिकॉज टी पैकेट की भी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी है, दैट इज 300 multiplied by. So in the numerator let's take the volume of cardboard box which is length into breadth into height. Cardboard box की length है 500 centimeter, breadth is 300 centimeter and height is 20 centimeter. And the volume of the tea packet length is 10 centimeter. Let's take it in the denominator. Breadth is 6 centimeter and height is 4 centimeter. Let us simplify. 10 का 0 हम कट कर देते हैं, 20 का 0 कट कर देते हैं, 6 1 जा 6 कर लीजिए, 6 5 जा 30 होता है, so this is 50. 4 and 500 I'll divide, it will give us 125. So our final values in numerator, denominator से सारे cancel हो चुके हैं. Numerator is 125 into 50 into 2. 50 into 2 is 100. So 125 into 100. Our answer is 12,500 boxes. तो इस बड़े कार्टन बॉक्स में कितने छोटे टी पैकेट्स आ सकते हैं? इसमें 12,500 स्मॉल टी पैकेट्स आ सकते हैं. और आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द क्वेश्चन इज हाउ मच सॉइल इज डग आउट इन डिगिंग अ वेल मेजरिंग 3 मीटर बाय 2.5 मीटर बाय 4.5 मीटर. उन्होंने कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम एक वेल मतलब एक कुआं डिगिंग करेंगे, मतलब एक कुआं खोदेंगे, तो उसमें से कितना सॉइल निकलेगा, कितनी मिट्टी निकलेगी एक कुआं खोदने पर. और कुआं की इन्होंने लेंथ 3 मीटर दी हुई है, ब्रेड्थ 2.5 मीटर दी हुई है, और कुएं की हाइट नहीं होगी, कुएं की क्या होगी, डेप्थ होगी, क्योंकि कुआं हम गहरे नीचे खोदते हैं. तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो कि डेप्थ है यहाँ पर वो दिया हुआ है. और उन्होंने पूछा है कि जब ऐसा हमें कुआं खोदेंगे तो उससे कितनी मिट्टी निकलेगी. सो रिमेंबर दैट अमाउंट ऑफ सॉइल डग आउट, जो सॉइल निकलेगा वो उतना ही होगा जितनी की कुएं की वॉल्यूम होगी. दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वेल. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वेल की यहां पर हम बात करें तो हमें यहां पर वेल का लेंथ 3 चीजें दी हुई है, मतलब हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो ये इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि ये जो वेल है ये एक क्यूबॉइड है, तो हम इसे क्यूबॉइड ले लेते हैं. तो जो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतनी ही अमाउंट ऑफ सॉइल इसे खोदने पर निकलेगी. सो लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय, हम हाइट को रिप्लेस कर देते हैं डेप्थ से, क्योंकि वेल की हाइट नहीं होती, उसकी डेप्थ होती है. सो लेट अस मल्टीप्लाई 3 2.5 एंड 4.5. डेसिमल हटाकर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये थोड़ा सा पेनफुल तो है. अब इसे सॉल्व करने का एक सिंपल अप्रोच देखिएगा. इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल अप्रोच आप देखिए. हम जाएंगे एडिशन मेथड से. हम इसको नॉर्मल से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, पर अभी हम यहां पर जाएंगे एडिशन मेथड से. एडिशन मेथड में आप जितने भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स का एडिशन कर लो. ये 3 हो गया, 2.5 का डेसिमल हटाकर प्लस करिए तो 2 + 5 ये 7 हो गया, मल्टीप्लाइड 4.5 का पॉइंट हटा दो तो 4 + 5 ये 9 हो गया. अच्छा, 3 × 7 कितना हो गया, 3 × 7 हो गया 21. 21 के डिजिट्स को प्लस कर लो, 2 + 1 ये हो गया 3, और 3 × 9 फिर से कितना आ गया, 3 9 = 27 आ गया. 27 को फिर से प्लस कर लो, 2 + 7 ये 9. इसका मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके हमारी जो आंसर की जो एडिशन वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है. एडिशन वैल्यू 9 आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर एक ऐसा नंबर होगा जिसके डिजिट को प्लस करके 9 आएगा. लुक एट द आंसर, डिजिट को प्लस करके 9 आएगा. अब ऑप्शन पर चलिए.
ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसके डिजिट को प्लस करके 9 आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन है 32.25, प्लस करेंगे 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 5 12, 12 को प्लस करोगे तो 1 + 2 ये 3 आ गया। हमारा आंसर 9 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड प्लस करो 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 को प्लस करो 1 + 8 9 आ गया, ये हमारा आंसर है। बाकी ऑप्शन चेक करिए 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 को प्लस करो 1 + 4 ये 5 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको प्लस करिए 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 को प्लस करो 2 + 1 3, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिनिश, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक बहुत हेल्पफुल मेथड है, एडिशन मेथड, जो आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में बहुत काम आएगा। बट माय पॉइंट इज आपके नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। अब उसको मल्टीप्लाई करना है तो एक छोटा सा काम कर लो, देखो ये 3 है, ये 2.5 है, हम यहाँ पर इसे, अब मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ। 3 × 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। अच्छा, अब ये 2.5 में 1 डेसिमल प्लेस है, 4.5 में 1 डेसिमल प्लेस है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो। 3 और 25, आप इसको 25 मानकर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 75, तो ये आ गया 7.5 और मल्टीप्लाई ये हो गया 4.5। 75 में 1 डेसिमल प्लेस, 4.5 में 1 डेसिमल प्लेस, दोनों में 1 + 1, तो फाइनल आंसर में होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेस। अब हटाकर आप मल्टीप्लाई करें 75 और 45, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 45, 5 5 = 25, 5 लिखा 2 कैरी, 5 7 = 35 + 2 37, 0 लगा दिया, 4 5 = 20, 0 कैरी 2, 4 7 = 28 + 2 30, प्लस करेंगे फिर से आंसर वही आ रहा है 3375 आ रहा है। 2 डेसिमल प्लेस लगाएंगे 33.75 हमारा आंसर आ जाएगा। और वही हमारा आंसर, ये एडिशन मेथड से भी हमारा आंसर वही आया। तो मेरा आपको यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि अगर तो हमारा मल्टीप्लिकेशन एक डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पर 3 × 2.5 × 4.5, थोड़ा एक्चुअली ट्रिकी तो है, थोड़ा चैलेंजिंग तो है, इतना सिंपल तो नहीं, मेंटली तो नहीं हो पाएगा। और मेंटली होने के लिए फिर आपका प्रिपरेशन लेवल एक्सट्रीम चाहिए, जो कि आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम तो डेफिनेटली आपका, आप सिर्फ वीडियोस आप देखते रहो, आपका एग्ज़ाम तो डेफिनेटली, अगर आपने सारे वीडियोस देखे और वीडियोस देखते समय आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हो, साथ में सॉल्व करते जा रहे हो, आपके 250 नंबर कहीं नहीं गए और उसमें आप कहीं ना कहीं एडमिशन आप सिक्योर कर ज़रूर लेंगे। पर वहाँ से ऊपर जाने के लिए, 280 290 जाने के लिए, उसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। टेबल्स लर्न कर लीजिए, स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, जीके के जितने वीडियोस बनाए हैं, जितने शीट्स दिए हैं उतने आप लर्न कर लीजिए, डेली रीडिंग करिए, इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू, तब आपका वो लेवल आएगा 285 290 295 आप तक पहुँचेंगे। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ गया है। The capacity of a certain cuboidal tank is 50,000 लीटर। एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम उसकी 50,000 लीटर्स है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स हाइट एंड लेंथ आर 5 मीटर एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो उन्होंने पूछा है कि उस टैंक की ब्रेड्थ क्या है अगर उसकी हाइट 5 मीटर है और लेंथ 2.5 मीटर है। वॉल्यूम यहाँ पर इन्होंने लीटर्स में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, इन्होंने लेंथ दी हुई है और इन्होंने हाइट दी हुई है, इन्होंने ब्रेड्थ पूछी हुई है। तो वो तो हम सिंपली आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेड्थ का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट। ये इन्होंने टैंक दिया। अब इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया है। चेंज इन्होंने ये किया है कि जो वॉल्यूम है वो इन्होंने लीटर में दे दिया है कि इतना पानी है वो लीटर में। तो सबसे पहले अगर वॉल्यूम हमें लीटर में दिया हुआ है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें लीटर को मीटर क्यूब में लाना है, और लीटर को मीटर क्यूब में लाना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना है। तो 50,000 लीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, 0 0 कट कर दीजिए,
आंसर आ गया 50 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में क्यों लाया हमने, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती। तो सबसे पहले हमने लीटर को मीटर क्यूब में लाया, डिवाइडेड बाय 1000। उल्टा करना होता मीटर क्यूब टू लीटर तो इनटू 1000 कर देते। अब हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गया है, हमें ब्रेड्थ निकालना है। ब्रेड्थ इज वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम इज 50, length is 5, sorry this is not breadth, this is height which is 2.5. 55 और 50 आप डिवाइड करिए, ये 10 हो जाएगा, और 10 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 4 टाइम्स 10 होता है। या फिर 2.5 का डेसिमल हटाना है, तो अगर डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना है तो 1 डेसिमल प्लेस है तो न्यूमरेटर में इंटू 10 करना होगा। जैसे न्यूमरेटर का 1 प्लेस होता था तो डिनोमिनेटर में 10 लेते थे। अब डिनोमिनेटर का 1 डेसिमल प्लेस है तो न्यूमरेटर में इंटू 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा 100/25। वैसे तो 2.5 10/2.5 4 है, पर आपको डेसिमल सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर का 1 डेसिमल प्लेस है तो न्यूमरेटर में इंटू 10 कर दिया, 100/25, आंसर 4 आ गया। सो द ब्रेड्थ विल बी 4 मीटर। दो यहाँ पर लर्निंग से, पहला तो लीटर को मीटर क्यूब में कैसे लाना है, और दूसरा ये डेसिमल वाला कि अगर डिनोमिनेटर में 1 डेसिमल प्लेस है तो उसको हटाने के लिए न्यूमरेटर में इंटू 10 करेंगे, 1 के बाद एक 0 लगाएंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सेज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 15 मीटर, 4.5 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड बाय इट। तो इन्होंने एक हमें रूम दिया हुआ है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है, मीन्स वो एक क्यूबॉइड है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई तो ये भी आप जजमेंट ले सकते हैं कि यहाँ पर क्यूबॉइड की बात चल रही है। अब वो क्वेश्चन में लिखें क्यूबॉइड या ना लिखें, आप अपना जजमेंट ले सकते हो कि लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी, इसका मतलब क्यूबॉइड की बात यहाँ पर चल रही है। अब इन्होंने ये पूछा है कि एक रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट बता दी, और फिर पूछा है कि ये बताओ अब उस रूम में कितनी एयर आएगी। तो एयर का मतलब क्या हो गया, ये पूछ रहे हैं कि उस रूम का वॉल्यूम क्या है, उसमें जो उस रूम का वॉल्यूम होगा उतनी उसमें एयर आएगी। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम, और रूम हमारा क्यूबॉइड है। So we'll find out the volume of this room, which is the cuboidal shape. So volume will be given by length 15 meter, breadth 4.5 meter and height 9 meter. अब वैसे तो आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसमें एडिशन मेथड में दिखा देता हूँ आप हाउ टू अप्लाई द एडिशन मेथड। 1 + 5 ये 6 कर लीजिए आप, ये 6 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 4 + 5 ये 9 कर लीजिए आप, मल्टीप्लाइड बाय ये 9 हो गया, 6 × 9 54 हो गया, 54, 5 + 4 9 हो गया, 9 × 9 81 हो गया, और 81 8 + 1 9 हो गया। तो फाइनल हमारी जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। अब अभी एक चीज़ सुनिए, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये जो एडिशन वैल्यू का, एडिशन मेथड का ये जो पैटर्न है, ये जो सिस्टम है जिसमें हम एडिशन करके आंसर, इसमें 9 हमारा बेस होता है और 9 की वैल्यू को हम 0 लेते हैं जैसी ज़रूरत। 9 को 9 भी ले सकते हैं, 9 को 0 भी ले सकते हैं। 9 का मतलब यहाँ पर 0 होता है, ये बेस होता है। तो अगर हम 0 के बारे में क्या जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करते समय कहीं भी 0 आ जाए तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। यही 9 के साथ भी है, एडिशन वैल्यू में 9 के साथ भी अगर कहीं पर भी 9 आ गया मल्टीप्लाई में तो फाइनल आंसर 9 आएगा। देखो यहाँ पर 6 × 9 × 9 था, एक 9 जैसे ही आ गया, या ऑलरेडी यहाँ पर एक 9 था, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। याद रखो, अगर मल्टीप्लाई चल रहा है और एक भी 9 आ गया तो फाइनल आंसर 9 ही होगा। जैसे 0 में क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते समय एक भी टर्म 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाता है। वैसे ही याद रखना है कि एडिशन मेथड में एक भी टर्म अगर 9 आ जाए तो फाइनल आंसर फिर 9 होगा।
तो यहाँ हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऐड करके हमारा 9 आ रहा है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 6 + 7 13 हो गया, 13 + 5 18 हो गया, 18 1 + 8 ये 9 आ गया। सेकंड देखेंगे 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 हो गया, 1 + 4 5, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 को प्लस करेंगे 1 + 9 ये 10 हो गया, 10 को प्लस करेंगे 1 + 0 ये 1 आ गया। तो ये 1 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमारा 9 आना चाहिए। इसको देखेंगे 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 को प्लस करेंगे 1 + 5 ये 6 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिसकी एडिशन वैल्यू 9 आ रही है। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से देखें, 15 × 4.5 × 9, 15 × 4.5 × 9, इसमें 4.5 का 1 डेसिमल प्लेस है, अभी आप हटा दीजिए, इसको आप एज 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लास्ट में 1 डेसिमल प्लेस लगाएंगे। 15 × 45, लेट्स डू इट हियर, दिस इज 15 45, 5 5 are 25, 5 carry 2, 5 1 are 5 + 2, this is 7, 0 लगा लीजिए, 4 5 are 20, 0 carry 2, 4 1 are 4 + 2, this is 6, ये आ गया 675। और अब आप इसमें मल्टीप्लाई करिए 9, 9 5 are 45 का 5 carry 4, 9 7 are 63 + 4 67, 7 carry 6, 9 6 are 54 + 6 ये हो जाएगा 60। तो आंसर हमारा आ गया 6075, और 1 डेसिमल प्लेस लेना था तो ये डेसिमल आपने लगा दिया, आंसर आ गया 607.5। सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर एक्चुअली, बट मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि आप दोनों मेथड पर एक्सपर्टीज लीजिए। आपकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी बहुत क्विक होनी चाहिए, ये ट्रिक वाले मेथड आप कब बचा कर रखो, ये तब बचा कर रखो कि भाई हाँ हमारा 2 मिनट बचे हैं और 4 क्वेश्चन बचे हैं, तब ये कैलकुलेशन करना बेवकूफ़ी है, तब आप ये ट्रिक लगाइए और आप आराम। लेकिन अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते आप, अगर नॉर्मल मल्टी नहीं ये तो ट्रिक पता है, अब तो इससे करेंगे आप, आई विल नॉट प्रमोट दिस, मैं ना इस चीज़ को नहीं सजा रही, ये ऐसे ट्रिक्स हैं उसको आप खास मौके के लिए बचा कर रखिए कि हाँ टाइम बहुत कम बचा है और मल्टीप्लिकेशन हमें करना है बड़ा, तब आप ऐसे मेथड्स को यूज़ करिए एज अ बूस्टर, है ना। अगर आप सभी में आप मल्टीप्लिकेशन बंद करके नहीं यही मेथड ढूंढना है तो ऐसा कभी ऐसा भी वो कर देते हैं कि 2 ऑप्शन दे दिए, दोनों में 9 9 आ गया, तब आप फंस जाओगे। तो आपका दोनों चीज़ों की आपको प्रैक्टिस, आपको बेसिक भी आना चाहिए, आपको आर्ट, क्योंकि स्कूल में तो आपके वो ये सब ट्रिक्स मानेंगे नहीं, वो तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Question says how many planks, each of which is 6 meter long, 30 centimeter broad and 15 centimeter thick, can be prepared from a wooden block 12 meter long, 75 centimeter broad and 90 centimeter thick. Understand the question. Planks मतलब होता है, plank मतलब लकड़ी का एक तख्ता, एक स्ट्रिप, वुडन स्ट्रिप। I'll draw that for you. और ये हमें प्लैंक्स बनाने हैं। प्लैंक की लेंथ ब्रेथ हाइट दी है 6 मीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और ये हमें एक वुडन ब्लॉक में से कट करने हैं। वुडन ब्लॉक की भी लेंथ ब्रेथ हाइट दी, मतलब ये दोनों ही क्यूबॉइड हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दिस इज द ब्लॉक ऑफ वुड, ये क्यूबॉइड शेप का ब्लॉक ऑफ वुड है। So this is the block of wood, its length is 12 meter, its breadth is 75 centimeter and its thickness को आप height ले लीजिए, that is 90 centimeter. Now be careful, इन्होंने लेंथ मीटर में दी हुई है
ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में, तो हम तीनों को भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं. 12 मीटर इज 12 इंटू 100 विच इज़ 1200 सेंटीमीटर. अब इसको आप 1200 लिखो या 12 इंटू 100 लिखो, इट विल नॉट चेंज. इसको 12 इंटू 100 ही रहने दीजिए. अब इसमें से हमें प्लैंक्स कट करने हैं लकड़ी के प्लैंक्स, मतलब ऐसे पीसेस हमें कट करने हैं. देखिएगा इस तरह के हमें पीसेस इसमें से कट करने हैं. ये इस तरह के आपने ज़रूर देखे होंगे पीसेस. तो ये हमें इसमें से कट कर करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस निकालना है. और ये प्लैंक्स की भी उन्होंने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है. लेंथ दी हुई है 6 मीटर, ब्रेड्थ इज 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस, मतलब वो हाइट आप ले लो 15 सेंटीमीटर. ना अगेन देखिए कि ब्रेड्थ और हाइट हमें सेंटीमीटर में, लेंथ मीटर में, तो इसे भी आप सेंटीमीटर में ले लो. 6 इंटू 100 कर लो. अब हमें इन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने प्लैंक हम कट करके निकाल सकते हैं. सो रिमेंबर, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक. ये जो लकड़ी का बड़ा जो पीस है, वुडन ब्लॉक है, उसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक. वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक. इनको डिवाइड करके हमारा नंबर ऑफ प्लैंक मिलेगा. कॉमन क्वेश्चन है. तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हो जाएगा 1200 इंटू 70 इंटू 90. सो लेट्स राइट डाउन इन द न्यूमरेटर. दिस इज 75, सॉरी. ट्वेल्व इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 90 और अपॉन में आप ले लीजिए वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 100 इंटू 30 इंटू 15. चलिए इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे. लेट अस सिंप्लीफाई. तो 31 जा 33 जा 100 कैंसिल, ये 2 आ गया. ये डिनोमिनेटर में 15 और 75 है. ये 15 1 जा 15 5 जा. मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30. आंसर इज 30 प्लैंक्स हम कट कर सकते हैं इसमें से. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी.